Namaskar, good morning. I am Rajiv, and it is my privilege to flag off the program for today and tomorrow with all of you. मगर उससे पहले एक थोड़ी महत्वपूर्ण सूचना. A few days ago, Sambandh became 10 years of age, which is a time for great happiness and joy for our entire team, for our stakeholders, and for all the people with mental illness whom we work with and their families. But no celebration. Yes, no celebration. Over the last year and a half, hundreds of thousands of people have gone. Many, countless more people have suffered. Not to speak of their families and the rest of their loved ones. May they be at peace. So, none of the usual kind of celebration, but instead, we have universal human values, a unique program brought to you by two unique people, and a program from which we believe each one of you will carry away a unique meaning. Enough of me. I will request my colleague Vicky to tell you a bit about the program and the people we shall be listening to. Vicky, all yours. Thank you so much, Rajiv. And I can't agree with you more that I think it's not really a celebration as we understand celebration. It is more a very important marking of a very important milestone for Sambandh Health Foundation. And I feel in that sense, it is a celebration of a different kind. It's a celebration of human beings standing up to things that are happening around us and finding new ways of relating and finding deeper ways of understanding what's happening to us and the events which are unfolding in our lives. For which I think UHV is a very, very important element for using that. So what I just want to briefly establish our connection with UHV. It's not just something that we know of, it is something that we deeply practice, even as part of Sambandh Health Foundation. So 10 years ago, when a few of us got together and we established Sambandh Health Foundation, mental health at that point in time was the domain of the experts. When I say domain of the experts, which is, I do not in any ways wish to undermine the very important roles that the experts, which is the psychologists and the psychiatrists and the psychotherapists who play in this field. But what we understood or what we wanted, what we felt as caring and concerned family and community members was that, yes, it is important, but it need not be the only way to respond to mental health. There needs to be something more alongside it. That is one way of doing it, but that should not be the only way of taking care of people who are struggling with mental health issues. Because somewhere we had begun to feel, some of us who had family members who were dealing with mental health struggles, and I was a community level worker in the mental health space. So our understanding mutually had come to a place where we felt that when it comes to recovery from mental illness issues, recovery is never just a clinical recovery. In fact, it is not a recovery till it becomes a social recovery. And our position as non-experts, in a way, became our biggest strength. Because, and what I mean by social recovery is that social recovery is when we recover in relationships, because we don't live in isolation. And sometimes, in fact, one of the things that happens in mental illness issues is that it creates isolation. Whereas social connections and relationships heal, are a big part of healing and recovery when it comes to mental health and mental illness. So that's where we understood the importance of Sambandh, and hence our name, Sambandh Health Foundation. And this is where I want to bring in where this learning or understanding came from. And it came, the source is, as of now for us,
UHV, which is Universal Human Values, or Jeevan Vidya, as we knew it as those many years ago. In fact, I would say that formally Sambandh came into being 10 years ago. But in many ways, the foundation of Sambandh Health Foundation was laid many, many years earlier, because Sanjay, Rita, and I were engaged with understanding Jeevan Vidya, and that in a way that cemented our relationship in some ways that was instrumental in bringing us together. So, in truth, I would say Sambandh is way, way older than 10 years. And it laid the foundation for the work that we do. It obviously gave us our name. Sambandh comes from our understanding of UHV. And not only just giving us the foundation and being very, very important in our inception, in the last 10 years, Sambandh has also been, UHV has also been instrumental in giving our journey a very, very clear direction. So 10 years ago, when we started this work, Sanjay Seth, who's one of the founder members of this organization, he insisted that we should write a framework. So the very first document that we created, which is our framework, which continues to guide us till date, actually came from the understanding that we had developed over the years through Jeevan Vidya. And one of the most fundamental understandings that we developed was that when we talk to a person, we talk to the person and we do not talk to the label. Yes, there could be a label of schizophrenia. Yes, there could be a label of bipolar. Yes, there could be a label of anxiety, depression, OCD, personality disorder, whatever those labels may be. But when we are relating with them, we are relating with the person, plus, of course, the label, which can be the domain of the person, they can take care of it. But when we, as community members, as family members, as people who care, when we are relating with them, we are relating with the person at all times. So that has been the basic fundamental ground that we have stood on, and that has come thanks to our understanding and our which has been imbibed over the years through Universal Human Values and Jeevan Vidya, and through many people who we came across as part of it. So this 10 years, what we are doing today, this 2-day workshop, today and tomorrow, is in some ways our gift of gratitude to UHV, to Jeevan Vidya, and to all the people who made it possible for us to engage with it. And in many ways, it is also our gift of compassion to the community which has built around us in the last 10 years. The community of members, the community of families, the community of donors, the community of well-wishers, the community of neighbors, and just about anyone who has come along. And believe me, there have been a lot of people who have come along with us in the last 10 years. So in many ways, this is our gift of compassion to everyone around us. On this note, I want to introduce Rajul ji and Sharmila ji, Dr. Sharmila Asthana and Rajul Asthana. और आई थिंक आप लोग शायद नाम से तो आप लोगों ने अनुमान लगा ही लिया होगा कि ये दोनों पति पत्नी हैं और काफी लंबे अरसे से पति पत्नी हैं, और आजकल के जमाने में सुखपूर्वक पति पत्नी रह पाना इतने लंबे समय तक वो भी एक बड़ा अचीवमेंट है. लेकिन शर्मिला जी और राजू जी के और भी बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं. So I would just quickly like to read out their formal profiles before I hand it over to them. So Dr. Sharmila Asthana is an MBBS and an MD in pediatrics from USA. After her medical training, Dr. Sharmila worked as assistant professor of pediatrics at St. Christopher's Hospital for Children in Philadelphia. And for a few years after that, the family moved back to India. In India, she was a senior consultant pediatrician with Apollo Hospital, Secunderabad, for about 17 years. She's been practicing comprehensive pediatric medicine. She also worked with Lucid Diagnostics for a few years. Throughout her career as a busy practitioner working with children and adolescents of all ages, she took a keen interest in the maintenance of health and the prevention of disease with minimal use of lab tests and medication. Her focus was largely on counseling, educating parents and children about the importance of self-discipline, which is eating right, having the right lifestyle, incorporating yoga and exercise in the daily routine as a means of maintaining good health. In 2017, she left medical practice
to join her husband in devoting her full time to understanding universal human values and holistic human health and making the efforts to bring these into living practice. She's a volunteer resource person for many of the UHV and Triple H programs conducted by All India Council for Technical Education through its National Coordination Committee for Induction Programs. The Universal Human Value Faculty Development Program, the Universal Human Values modules of the Student Induction Program, the Holistic Human Health module of the Student Induction Program. These are all the programs that she's a part of. She lives in Hyderabad with her husband and 2 sons. Now to come to Rajulji. Mr. Rajul Asthana is a BTech and MTech from IIT Delhi. He's the former founding director of International Resource Center for Universal Human Values and Ethics at Punjab Technical University, Jalandhar. Presently, he is vice chairperson of AICTE's NCUHV, which is National Committee for Universal Human Values. And he's a member of AICTE's NCCIT, which is National Coordination Committee for Induction Programs. He has 28 years of corporate experience in India and USA. He was CIO of the Industrial Products Division of W.L. Gore and Associates USA, and later Vice President with Satyam Computer Services. He was a founding member of Global Council of Corporate Universities, France, and member of the NASSCOM's Education Council. As global head of the Satyam Learning Center, he was responsible for co-developing and implementing Satyam's learning strategy for associates. He believes that corporate universities, along with mainstream education, can be the agents of personal and social transformation. Since 2010, he has been devoting his time, along with his wife, Dr. Sharmila Asthana, for a group effort at Manvya Shiksha Sanskar Sansthan, Kanpur, to understand, live, and promote value-based education, holistic human health, natural farming, and value-based living. He is the co-author of the textbook and teacher's manual on UHV, along with R.R. Gore, G.T. Bagaria, which is a foundation course in human values and professional ethics. So without taking any more time, I leave the space and the spot for Rajulji and Sharmilaji to take us through today and tomorrow through this workshop. Thank you very much. Okay, thank you. राजीव जी, विकी, रीता और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो बात हुई है कि जो मानसिक स्थिति है लोगों की, वो इंडिविजुअल की स्थिति तो है ही, लेकिन उसमें परिवार का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, तो उसमें परिवार की एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है और उसी तरह से समाज की भी भूमिका रहती है। तो कोई भी व्यक्ति में यदि इस तरह की कोई भी व्याधि होती है, तो वो केवल और केवल उस व्यक्ति की नहीं है, लेकिन पूरे समाज का उसमें एक भागीदारी रहती है। तो पूछें कि क्या हम सुखी होना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं और सुख समृद्धि की निरंतरता चाहते हैं, तो आप लोगों का क्या उत्तर आता है? आपको लगेगा कि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, लेकिन क्या जवाब आता है आपका? तो ये तो बहुत आसानी से दिखता है कि हम सुखी होना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं, इसकी निरंतरता चाहते हैं। लेकिन अगर हम इसको भी पूछें कि अभी की क्या स्थिति है, अभी अगर हम अपने को देखें तो क्या हम सुखी हैं, समृद्ध हैं और क्या इसकी निरंतरता बन पा रही है? ये पूछा है कि अभी की क्या स्थिति है। तो चारू कह रही है कि हाँ, आई एम हैप्पी। चारू गर्ग कह रही है मानसिक तौर पर बेहद खुश, शरीर तौर से नहीं। अच्छा राजुल जी, एक प्रश्न है, खुश हैं या नहीं है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। समझ में नहीं आता है कि हम खुश हैं या नहीं है, मालूम नहीं। वो एक और भी स्थिति है कि हमको पता ही नहीं है कि हम सुखी हैं कि दुखी है, ये क्या स्थिति है। इसको कई सारे नाम दिए जाते हैं, जैसे हम तृप्त हैं कि नहीं है,
सेटिस्फाइड है कि नहीं है, सक्सेसफुल है कि नहीं है, ऐसे करके कुछ कुछ नाम दिए जाते हैं। बट आपके लिए जो भी सुख और समृद्धि की परिभाषा है उसके हिसाब से हम लोग आंसर कर सकते हैं। हैप्पी टू सम एक्सटेंट बट वांट मोर, हमारी बोल रही है। बढ़िया। गुरप्रीत बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं गुरप्रीत? एक मिनट। आई एम हैप्पी बट नॉट कंटेंट। ओके, तो आपकी कोई परिभाषा है सुख की, हैप्पीनेस की, और कंटेंटमेंट की और परिभाषा है ना? तो ये जो लेफ्ट साइड है इस पे तो लगता है काफी ठोस हमारे पास उत्तर है। जो राइट साइड है उसमें लगता है कि कभी हमको सुखी लगता है, कभी दुखी लगता है। इसकी निरंतरता है कि नहीं है इसको देख ले, और चाहते हैं कि नहीं इसको देख ले। तो इसको थोड़ा भी और वो करेंगे तो हमको ये दिखाई देगा कि दोनों में जैसा हम होना चाहते हैं और जैसा अभी हम हैं उसमें कुछ अंतर है, और ये अंतर बना रहे या ये अंतर जो है ये ठीक हो जाए, ये मुद्दा है। तो क्या चाहते हैं कि अंतर बना रहे, या हम ये चाहते हैं कि हमारे सुख समृद्धि की निरंतरता हो जाए, ये अंतर जो है जैसा हम होना चाहते हैं और जैसा हम हैं वो मिट जाए? कैसा चाहते हैं? इस अंतर को भरना चाहते हैं। उस्मान जी कह रहे हैं फिल इन द गैप, चारू कह रही हैं फिल इन द गैप, अमन कह रहे हैं कि मिट जाए। तो ऐसी हमारी चाहना है। ये तो बहुत सिंपल है, अब देख लेना। अब हमने इतनी मेहनत की है पूरी जिंदगी में, अभी तक ये मिटा नहीं है, इसका क्या कारण है? इसको हम लोग थोड़ा बहुत जांचने का काम करेंगे। जी वंदना जी बताइए। जी नमस्कार। नमस्ते वंदना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन हाँ, मैंने बहुत कुछ खोया भी है, हाँ, और मैं जो है उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाती हूँ, और जो नहीं खो गया है उस पे ही फोकस रहता है, इसलिए खुश रहने की स्थिति नहीं आ पाती है। वही। अभी सुविधाएं तो हमारे पास पर्याप्त हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स भी हैं, लेकिन खुश क्यों नहीं रह पाते हैं? इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं, और ये अंतर जो है ये भर जाए, अपने लिए भर जाए, अपने आसपास में जो लोग हैं उनके लिए भर जाए, है ना? उसी तरह से हर बच्चे के लिए ये उपलब्ध हो जाए। तो जैसे वंदना जी कह रही हैं कि बहुत कुछ है लेकिन समस्याएं भी बहुत सारी हैं, है ना? हर स्तर के ऊपर अपनी समस्याएं दिखाई देती है। समस्याएं व्यक्तिगत स्तर पे भी दिखाई देती हैं, है ना? संबंध में भी समस्याएं दिखाई देती हैं। ऐसे करके समाज में, प्रकृति में, अभी जो ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, जो कोविड चल रहा है, वो सारी समस्याएं जो है वो अपने को दिखती ही है ना? ये इतनी सारी समस्याएं हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ये सब समस्याएं हैं कि नहीं है। और हम ये चाहते तो नहीं है कि ये समस्याएं बनी रहें, लेकिन क्या दिशा में जा रहे हैं? समस्याएं हर वर्ष घटती जा रही है या बढ़ती जा रही है? तो शोभना जी कह रही हैं आई हैव गॉट यूज्ड टू फीलिंग लेस बट इट हैज सीरियस हेल्थ इफेक्ट्स। ऑफ कोर्स इट हैज सीरियस हेल्थ इफेक्ट्स। In fact, we found that people who are generally happy, positive, they have had, even if they've had COVID, they have come out of it in a very few days. And those who have been unhappy and not very positive, they have had a lot of problems. So Aman ji कह रहे हैं कि issues continue to rise. तो ये तो है। अब मुद्दा ये है कि ये जो समस्याएं हैं ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं या अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग इसका समाधान ढूंढना होगा। लेकिन अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डू यू थिंक, आर दीज प्रॉब्लम्स अनरिलेटेड और दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, हैविंग सम बेसिक रूट कॉज? तो आशीष जी कह रहे हैं कि दे आर इंटरकनेक्टेड प्रॉब्लम्स। बढ़िया, इंटरकनेक्टेड तो है, इसका रूट कॉज आपको क्या दिखता है? शुभ्रा जी कह रही हैं आई थिंक ऑल द प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड।
it's common dissatisfaction, but what is the root cause? शुभ्रा जी सोचिए, रूट कॉज क्या होगा, इसका जो मूल में क्या प्रॉब्लम क्या है, तो इसके ऊपर हम लोग सोचे। अभी हमको जो दिख रहा है ना, वो तो करना दिख रहा है, डूइंग दिख रहा है, व्यवहार दिख रहा है, कार्य दिख रहा है ना। तो हम लोग को ये देख करके ये दोनों चीजें दिखाई दे रही है। एक तो जो हमारी चाहना है सुख समृद्धि की निरंतरता, ये पूरी नहीं हो पा रही है, ये भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि हमने कई सारी समस्याएं जो हैं वो सब इकट्ठा कर लिए हैं। हम इसलिए इकट्ठा कर लिए कह रहे हैं क्योंकि मानव का इसमें बहुत बड़ा रोल है, जो पहले बहुत सारी समस्याएं लिस्ट की थी। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और विस्तार में देखें तो हमारे भाव विचार जैसे होते हैं वैसा हमारा करना होता है। आप सीधा सीधा देख पाते हैं, जैसे आप अपने से अगर पूछें कि आप अपने बच्चे को कब डांटते या मारते हैं, जब आपका भाव जो है वो ठीक होता है, आपका मूड ठीक होता है, या आपका पहले से ही मूड खराब होता है, उस वक्त आप अपने बच्चे के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं? बताइए, ये देख पाते हैं जुड़ाव? जैसा हमारा भाव विचार होता है वैसा हमारा बाहर करना भी होता है, उसका एक्सप्रेशन भी वैसा ही होता है। क्या देख पाते हैं इस जुड़ाव को? अनीता जी कह रही हैं जब मूड खराब होता है तब, है ना। तो खराब होता है तब हम देख पाते हैं, और अच्छा होता है तो भी हम देख पाते हैं, है ना। चारू जी कह रही है been struggling with this, all my thoughts influence my behavior with my child. Of course it does. It has a major effect on your child. अब इसमें हमको देखना होगा कि हमारा भाव विचार जो है वो कहाँ से चलता है। वो हमारी दृष्टि के अनुसार ही चलता है। जैसी दृष्टि होती है हमारी, वैसा हमारा भाव विचार बाय एंड लार्ज चलता है। तो दृष्टि को थोड़ा सा और अगर खोल के देखेंगे तो ये देखेंगे कि दृष्टि का मतलब क्या है। जिन चीजों के साथ में हम जीते हैं, हम मानव के साथ में जीते हैं, अपने साथ में जीते हैं, दूसरे व्यक्ति के साथ में जीते हैं, है ना, समाज में जीते हैं, प्रकृति में जीते हैं, पूरे अस्तित्व में जीते हैं, इन वास्तविकताओं के बारे में हमने जो समझा है या माना है वो हमारी दृष्टि में, हमारे संस्कार में बैठा रहता है। उसी के आधार पर हमारा भाव विचार चलता है और उसी के आधार पर हमारा जो करना है वो चलता है। ये जुड़ाव देख पाते हैं आप लोग? जब प्रॉब्लम हो तो दृष्टि बदलना बड़ा ही मुश्किल है, अनीता जी कह रही हैं। ऑफ कोर्स दृष्टि बदलना तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हम दृष्टि को बनाने का काम कब करेंगे? जब प्रॉब्लम होगा तब करना शुरू करेंगे, या दृष्टि का जो बनने का काम है वो शुरू से करना शुरू करेंगे? प्रॉब्लम जब नहीं है तब से करेंगे, अपनी मेन स्ट्रीम एजुकेशन में ही करेंगे। सीता जी ठीक ही कह रही है कि इसको तब करना है जब भी प्रॉब्लम नहीं है, तो जब आराम में है कम से कम तब कर ले इस काम को, दृष्टि ठीक कर ले, है ना। दृष्टि ठीक कर लेंगे तो हमारा भाव विचार ठीक हो जाएगा, भाव विचार ठीक हो जाएगा तो हमारा करना भी ठीक हो जाएगा। समस्या ये है कि हम करने के ऊपर इतना जोर देते हैं, हम ना तो भाव विचार पे जोर देते हैं, और दृष्टि तो हमारे दृष्टि में है ही नहीं ज्यादातर, है ना। तो बच्चे से आप लोग क्या पूछते हैं? क्या कर रहे हो पूछते हैं, या क्या सोच रहे हो पूछते हैं? अपने बच्चे से आप लोग क्या पूछते हैं? हाँ, सृष्टि जी कह रही हैं क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, ये सब पूछते हैं। समित जी कह रहे हैं कि व्हाट आर यू थिंकिंग पूछते हैं। बहुत अच्छी बात है ना। ये पूछना शुरू करें, क्या सोच रहे हो, आपका क्या भाव है ना, आप में क्या फीलिंग चल रहा है, ये सब पूछना शुरू करेंगे। अपने में देख पाएंगे तो दूसरे को पूछना शुरू करेंगे इस काम को।
उसी तरह से अगर उससे भी ऊपर जाएं दृष्टि के बारे में, तो दृष्टि के बारे में भी पूछना शुरू करेंगे, है ना। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं कि हमारी दृष्टि जो है वो वास्तविकता के अनुरूप है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हमारी जो दृष्टि है वो वास्तविकता के अनुरूप नहीं है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि भाई हमारी दृष्टि जो है वो हमारी वास्तविकता के अनुरूप है, और ये भी हो सकता है कि भाई हमारी दृष्टि जो है वो अनुरूप नहीं है। तो क्या ठीक रहेगा? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हो जाए, ये ठीक रहेगा, या जैसी सृष्टि है, जैसी वास्तविकता है, वैसी हमारी दृष्टि हो जाए, कौन सा ठीक रहेगा? तो सृष्टि कह रही है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मतलब हमने अगर मान लिया है कुछ कि दूसरे को हमारा शासन स्वीकार कर लेना चाहिए, तो वैसा ही दूसरा हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। ये मतलब निकलता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि के बारे में। या आप शायद कहना ये चाह रही हैं कि जैसी भी सृष्टि है वैसी हमारी दृष्टि हो जाए। तो इसको देखिए, मुद्दा ये है कि हमारा जो जीना है वो तीनों लेवल के ऊपर है। दृष्टि के लेवल पे भी है, भाव विचार के लेवल पे भी है, करने के लेवल पे भी है। और इन सब के मूल में हमारी दृष्टि है, जो हमारी जो वर्ल्ड विजन है। तो संगीता जी कह रही हैं कि जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि। तो इस सब को जांच लें, दोनों ऑप्शंस। आदमी के पास तो दोनों ऑप्शंस हैं, ह्यूमन बीइंग के पास तो दोनों ऑप्शंस हैं। तो इस वर्कशॉप में इन 4 दिनों में हम लोग कुछ प्रस्ताव रखेंगे जो कि आपको अपनी दृष्टि के साथ में मैच करना है ना। मैच करके देखना है कि इसको जांचेंगे, और जांचने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल सा तरीका है ना। हम लोग ये नहीं चाहते कि जो हम कह रहे हैं वो आप मान लें, माने नहीं, जांचें। तो जैसे हमने कुछ भी बोला तो आप उसको माने नहीं, आप उसको जांचें। और जांचने का सबसे सिंपल तरीका जो है वो अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर, अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर जांचने का सबसे सिंपल तरीका है। तो अगर हम आपसे ये पूछे कि आप सुखी रहना चाहते हैं, तो आपने कहा कि हाँ रहना चाहते हैं, निरंतर सुखी रहना चाहते हैं। ये उत्तर आपको कहाँ से मिला? ये आपने किसी पुस्तक में पढ़ा, किसी बुजुर्ग ने आपको बताया, क्लास में इसको डिस्कस किया गया, कहाँ से पता लगा आपको? आई डिटर्मिन्ड इट माई सेल्फ। हाँ, आशीष जी कह रहे हैं डिटर्मिन्ड इट बाय माई सेल्फ। बहुत अच्छा। तो अंतरतम से ये उत्तर आ रहा है, आपके अंतरतम से। तो हर व्यक्ति में ये जो सहज स्वीकृति की जो संभावना है वो हर व्यक्ति में है। तो वहां से उत्तर अगर हमारा आता है तो हम उसको अपने अधिकार पर जांच करके स्वीकार कर पाते हैं। तो आज और कल हम लोग एक तरह से डायलॉग करेंगे, संवाद करेंगे। ये संवाद जो है ये हमारे और आपके बीच में शुरू हो रहा है, लेकिन हम लोग की चाहना तो ये है कि ये संवाद आप में चलता रहे, आप में ये संवाद चले, आप इसका खुद उत्तर ढूंढ पाए, है ना, सही उत्तर ढूंढ पाए। तो ये जो संवाद आपके अंदर चलने वाला है, ये आप जैसे हैं और आप जैसा होना चाहते हैं, आप जैसा होना सहज स्वीकार करते हैं, इन दोनों के बीच में है। और ये पूरे जो वर्कशॉप है इसका आशय तो ये है कि ये डायलॉग आप में शुरू हो, अगर ऑलरेडी नहीं चल रहा है तो। अभी बहुत सारा डायलॉग इसमें चलता रहता है कि समस्या है, समस्या है, समस्या है, पुरानी चीजों को याद करते रहते हैं, है ना। लेकिन आगे का क्या करना है हमको, उसकी स्पष्टता के लिए डायलॉग जरूरी है। तो उस डायलॉग को
स्ट्रेंथन करने की बात है इस पूरे वर्कशॉप में। तो अब एक एक करके हम लोग जितनी वास्तविकताओं के साथ हम जीते हैं उनको धीरे धीरे करके एक्सप्लोर करेंगे। और ये जांचने की विधि ठीक रहेगी क्या? अपने अधिकार पर जांचना ये ठीक रहेगा, या जो हम कह रहे हैं उसको मान लेना ठीक रहेगा? तो उस्मान जी कह रहे हैं जांचना, एग्जामिन, रितु जी कह रही है, सृष्टि कह रही है, समित कह रहे हैं जांच लेना। बिल्कुल ठीक बात है ना? ये जांचने का जो काम है इसको हम लोग करेंगे। ठीक।